غوث الورا کا انعقاد کیا ہے۔ اس عظیم الشان بزم محبت میں ہندوستان کے مشاہیر علماء کرام، خطباء اسلام، شورائے اسلام کی آمد ہے۔ پیکر خلوص و وفا حضرت علامہ و مولانا متاع الدین صاحب قبلہ فیضی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ کا حکم فقیرہ فرزاد کی تحدیث تک حاضر آیا۔ آنے کے بعد مقدس ہستیوں سے ملاقاتیں ہوئیں، عظیم عظیم نقیبوں، خطیبوں، شاعروں سے۔ ایسے بھی یہ زمین خطابت کے لیے، شاعری کے لیے یہ زمین محتاج نہیں ہے۔ جس طریقے سے دوسری جگہوں پہ زمین سونا اور چاندی اگلتی ہے، اسی طریقے سے مدھو پور اور گری ڈیہ کی زمین شاعروں اور خطیبوں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ زمین نہ شاعری کے لیے محتاج ہے، نہ خطابت کے لیے۔ آپ حضرات نے مجھے بلا لیا، میں آپ کا مشکور ہوں۔ آج کی اس بزم محبت سے بس ایک پیغام لے کر جانا ہے کہ چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، چراغ عشق نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ حقیر جان کر جنہیں بجھا دیا ہم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کا چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے سماجیات، زمین پہ رہنے والے انسانوں کا ماحول اچھا نہیں تھا۔ ہر طرف بت پرستی، کفر پرستی، جہالت، ثقالت کا دور دورہ تھا۔ ایک باپ اپنے ہاتھوں بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا، بھائی بھائی کی زمین و جائیداد کو ہڑپ لیتا، قبیلہ قبیلے کو قتل کر دیتا، انسانوں کی منڈیاں لگا کر اپنے ہاتھوں سے انسانوں کو غلام بنا کر بیچا کرتا۔ ایک بیٹا باپ کے انتقال کے بعد ماں کو باندی اور نوکرانی بنا کر کے رکھ لیتا۔ لوگ شراب کے نشے میں مست رہتے، زمانہ جوا کھیلنے میں مست رہتا، لوگ موچ کی لڑائی کے لیے اپنی زندگی، جوانی اور خاندان قربان کر دیتے۔ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں اللہ نے ہمارے پیغمبر کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنا کر بھیجا۔ کہا محبوب آپ کائنات کے لیے رحمت بن کر جا رہے ہیں، کام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے یُزَکِّیکُم، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تمہارے ماحول کو اچھا کر دے، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تمہارے سماج کو اچھا کر دے، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تمہارے بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارا جا سکے، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ سماج کو ایک نئی دشا دی جائے اور بیواؤں کو سماج میں رتبہ اور مقام دلایا جا سکے۔ اب ایسے بگڑے ہوئے سماج کو بدلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بگڑے ہوئے سماج میں نئے کردار کی روشنی کو جگانا اتنا آسان نہیں تھا۔ ساری دنیا مخالفت میں کھڑی تھی، پھر بھی آمنہ کے لال نے 23 سال کی تھوڑی سی مدت میں پرچم اسلام کو پوری دنیا میں لہرا دیا اور بتایا کہ دنیا والوں، کامیابی کی صرف ایک راہ ہے اور اس راہ کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، بیٹیاں زحمت نہیں، بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ بیٹیاں جلنے کے لیے نہیں آئیں، بیٹیاں ڈولیوں میں سجنے کے لیے آئی ہیں۔ بیٹیاں زندہ دفن ہونے کے لیے نہیں آئیں، بلکہ بیٹیاں پیار اور محبت کرنے کے لیے آئی ہیں۔ لوگ بیٹوں کی ولادت میں خوشیاں مناتے، نبی نے کہا بیٹا پیدا ہو تو کم خوشیاں مناؤ، بیٹی پیدا ہو تو زیادہ خوشیاں مناؤ۔ الحمدللہ
آج اسی سنت کو زندہ کرنے کے لیے محمد آزاد صاحب نے اپنی پوتی کی عقیقے کے موقع سے، ولادت کے موقع سے اس عظیم الشان جشن کا انعقاد کیا ہے۔ قابل مبارکباد ہے رئیس بھائی جنہوں نے آج یہ بتایا کہ لوگوں بیٹیاں زحمت نہیں ہے بلکہ نبی نے فرمایا بیٹیاں رحمت ہے، تو ہم زمانے کو یہ بتا رہے ہیں بیٹیاں کل بھی رحمت تھی اور بیٹیاں آج بھی رحمت ہے۔ یہی وجہ ہے اس عظیم الشان بزم محبت کا انعقاد ہوا ہے۔ آج سماج میں بیٹیوں پہ ظلم و ستم آیا ہے، لیکن وہ دور جس دور کو ظلم و ستم کا دور کہا جاتا ہے، کیا کوئی باپ اپنے ہاتھوں بیٹی کو زندہ دفن کر دے گا؟ ایسا کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ کیا ایک بیٹا ماں کو باندی اور نوکرانی بنا کر رکھ لے گا؟ ایسا کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ کیا کوئی شخص اپنی بیوی کو ہفتے میں 10 دن کے لیے گھر سے نکال دے گا؟ ایسا کسی نے سوچا نہیں ہوگا۔ کیا ایک عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو اس کے شوہر کی چتا پر اسے زندہ جلا دیا جائے گا؟ ایسا سماج نے سوچا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ سب ہوتا تھا ان ساری برائیوں کو جس ذات نے مٹانے کا کام کیا، اس ذات کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آقا نے اعلان فرمایا لوگوں یہ بیٹیاں جلائی نہیں جائیں گی۔ قرآن نے کہا والمحسنات من النساء، اے لوگوں عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ آمنہ کے لال اعلان فرماتے ہیں یہ بیٹیاں زحمت نہیں خدا کی رحمت ہے۔ بیٹیوں سے پیار کرو جس طریقے سے تیرا پیغمبر اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے۔ بیٹیوں سے پیار کرو جس طریقے سے تیرا پیغمبر اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں فاطمہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جب نبی نے اعلان کیا کہ بیٹیوں سے صرف پیار ہی نہیں کرو بلکہ بیٹیوں کو جگر کا ٹکڑا کہو، ایک شخص روتا ہوا نبی کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے آقا جی کیا اگر میں اسلام قبول کر لوں تو اللہ تعالیٰ میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں بے شک اگر کوئی شخص صدق دل سے توبہ کر کے اسلام کے دامن کرم میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ حالت کفر کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مگر میں نے اتنی بڑی خطا کی ہے کہ ایسا نہیں لگتا کہ رب قدیر مجھے معاف کرے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں بتاؤ تم نے کون سی غلطی کی ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات ہیں۔ کہتا ہے آقا آپ تو بیٹیوں کو رحمت کہتے ہیں، کہا ہاں کہتا ہو۔ کہا آپ بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں، کہا ہاں کرتا ہو۔ کہا آپ سماج میں عورتوں کو عزت دیتے ہیں، کہا ہاں دیتا ہو۔ کہا آقا میں عورتوں کا دشمن ہوں، میں بیٹیوں کا دشمن ہوں۔ آقا میری بیوی امید سے تھی، حمل سے تھی، میں تجارت کے لیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اے میری شریک حیات اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کی پرورش کرنا اور اسے زندہ رکھنا، اور بیٹی پیدا ہو تو اسے قتل کر دینا اور مار دینا۔ آج بھی سماج میں کچھ لوگ اس مزاج کے جی رہے ہیں، نام مسلمان مگر سینے میں کفر پل رہا ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو صاحب چہرہ مرجھا جاتا ہے، بیٹی پتا چل جائے کہ پیٹ میں بیٹی ہے الٹرا ساؤنڈ کے مادھیم سے تو آج بھی بھارت میں لاکھوں بیٹیوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے کیا یہی ترقی یافتہ دور ہے؟ لیکن سنو جب الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم نہیں تھا، زمانہ کفر کے عالم میں پل رہا تھا، ایسے موقع سے کفر کے آنگن میں مصطفیٰ جان رحمت نے رحمت کا حسین چراغ جلایا۔ ہاں میں بیٹیوں کو رحمت کہتا ہوں، بیٹیاں خدا کی رحمت ہے۔ کہا آقا میں نے اپنی بیوی سے کہا بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا۔ آقا کچھ دنوں کے بعد میں تجارت سے واپس آیا، میری بیوی میرے خوف سے میرے ڈر سے جھوٹ بولتی رہی۔ آقا میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے میرے خوف کی وجہ سے ایک باپ کو اپنے ہاتھوں سے بیٹیوں کو مار سکتا ہے لیکن ایک ماں اپنی بیٹی کو کیسے مارے گی؟ جس ماں نے 9 ماہ بیٹی کو پیٹ میں رکھا ہو، جس ماں نے اپنا خون جگر پلایا ہو، وہ ماں بھلا ان ہاتھوں سے اپنی بیٹی کا قتل کیسے کرتی؟ آقا
मेरी बीवी ने मेरे खौफ से मेरी बेटी को पड़ोस में रख दिया और मना कर दिया, है मेरे पड़ोसी, मेरे शौहर को न बताना कि ये मेरी बेटी है, मैं तेरी खिदमत करती रहूंगी, तेरा खर्च उठाती रहूंगी। आका कुछ दिनों के बाद मैं वापस आ गया। आया तो मैंने बीवी से पूछा, बता अल्लाह ने क्या दिया? कहा कि सुनो, अल्लाह ने हमें बेटी अता की और मैंने बेटी को मार दिया। मेरी बीवी मेरे खौफ से झूठ बोलती रही, मगर एक बच्ची पड़ोस में रहती थी। आका मैं उस बच्ची से बेपनाह प्यार करने लगा। वो बच्ची मेरे पास आती, मैं गोद में बैठा कर उसके साथ खेलता। आका उससे मोहब्बत करता, उससे प्यार करता। मेरी बीवी रोजाना देखती। जब मेरी बीवी को ये यकीन हो गया कि मेरा शौहर मेरी बेटी से मोहब्बत करने लगा है, मेरा शौहर अपनी लाडली से प्यार करने लगा है, मेरा शौहर अपनी बेटी की मोहब्बत में जान देने को तैयार है, तो एक रोज मेरी बीवी ने मुझसे पूछा, ऐ मेरे शौहरे नामदार, जिस बच्ची से आप इतनी मोहब्बत करते हो बताओ बच्ची कैसी लगी? मैंने कहा, ए मेरी शरीके हयात, इस बच्ची को न देखूं तो दिल को करार नहीं मिलता है, इस बच्ची को न देखूं तो दिल को सुकून नहीं मिलता है। जब इस बच्ची से प्यार करता हूं तो मेरा मुरझाया हुआ दिल हरा भरा हो जाता है। आका जी, मेरी बीवी को यकीन हो गया कि जो शख्स इस बच्ची से इतनी मोहब्बत कर रहा है, अब वो इस बच्ची को जिंदा दरगोर नहीं करेगा, अब वो इस बच्ची को कत्ल नहीं करेगा। मेरी बीवी ने मुस्कुराकर मुझसे कहा, ऐ मेरे शौहर, जिस बच्ची से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, ये बच्ची किसी और की नहीं बल्कि ये बेटी आपकी ही है। मैंने इसे पड़ोस में रख दिया था। कहकर फूट फूट कर रोने लगा। जब रोने लगा तो आका के करीब के आंखों में आंसुओं के कतरात आ गए। आका फरमाते हैं, रो क्यों रहे हो? कहा, आका मेरे सर पर कुफ्र सवार हो गया, शैतान हमला आवर हुआ, मैंने हाथ में फावड़ा लिया, कुल्हाड़ी ली और अपनी बेटी की कलाई पकड़कर जंगल की तरफ लेकर चल पड़ा। आका जब मैं जंगल की तरफ चलने लगा, मेरी बेटी मुझसे बार बार पूछती, ए मेरे बाप, मुझे जंगल में कहां लेकर जा रहे हो? मैं बेटी से कहता, मैं तुझे मेले में लेकर जा रहा हूं, तुझे खिलौने और मिठाइयां दिलाऊंगा। आका जब मैं सुनसान जंगल में लेकर पहुंच गया तो आका मैंने बेटी को बैठा दिया और अपने फावड़ा से जमीन खोदने लगा ताकि जमीन खोद कर एक गड्ढा तैयार करूं और अपनी बेटी को उसमें डाल दूं। जब आका इतना सुने तो मुस्तफा जाने रहमत रोने लगे। ऐ मेरी कौम के लोगों, आका फरमाते हैं, क्या कोई बाप भी अपनी बेटी के लिए गड्ढा खोद सकता है? क्या कोई बाप अपनी जिंदा बेटी के लिए कब्र तैयार कर सकता है? क्या समाज इतना गिर जाएगा, म्यान इतना गिर जाएगा, इंसानियत इतनी गिर जाएगी? सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बताओ मेरी कौम के शहजादों, आज आपको किसी का दुख सुनकर तकलीफ का एहसास नहीं होता? आज आप किसी के गम को सुनकर आपके आंखों में आंसुओं के कतरात नहीं आते? याद रखिएगा, दूसरों की तकलीफ सुनकर अगर दिल को एहसास हो जाए तो समझ लेना तू भी जिंदा है, तेरा ज़मीर भी जिंदा है। लेकिन जिस दिन दूसरों की तकलीफ सुनकर तेरा दिल न रोए, तेरी आंखें अश्क बार न हो, समझ लेना तू भी मर गया है, तेरा किरदार भी मर गया है, तेरा ज़मीर भी मर गया है। आज लोग किसी पे जुल्म हो, जमाना खामोश है। कहा जुल्म उस पर हो रहा है, लोग दूसरों के जुल्म को जुल्म समझना छोड़ दिए। यही वजह है अपनी बेटी के लिए समाज जान देने को तैयार है और बहुओं पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने को तैयार है। मगर कौनैन के ताजदार हैं, अपनी बेटी को गम पहुंचे तो भी आका के आंखों में आंसू हैं और दूसरों की बेटी का गम सुने तो भी आका के आंखों में आंसू हैं। ऐ मेरी कौम के शहजादों, गौर से सुनना, आका फरमाते हैं, क्या कोई बाप अपनी बेटी के लिए कब्र खोद सकता है? जब आका रोए तो सहाबा भी रो पड़े। कहता है, आका जी हाँ, मैं ही वो पापी बाप हूँ, मैंने अपने हाथों से गड्ढा तैयार किया। जब मिट्टी के जर्रात उड़कर मेरे जिस्म पर पड़ते, कंकर के टुकड़े उड़कर मेरे जिस्म पर पड़ते, आका मेरी बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे जिस्म पे लगने वाले गर्दो गुब्बार को साफ कर देती, जिस्म पे लगने वाले कंकरों को साफ कर देती, पत्थरों को हटा देती, कहकर फूट फूट कर
रोने लगा। आका रोते पूछते बता फिर क्या हुआ? कहा आका मैं बड़ा जालिम बाप था, मेरी बेटी मुझसे मोहब्बत करती रही और मैं बेटी पे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता रहा। आका मैंने अपनी बेटी को पकड़ा और उठाकर गड्ढे में डाल दिया। मेरी बेटी आवाज देने लगी, ऐ मेरे बाप, क्या जमीन पर औरतों को जीने का हक नहीं है? क्या जमीन पर बेटियों को जीने का हक नहीं है? क्या समाज में सिर्फ बेटे ही जीने के लिए आए हैं? क्या बाप का प्यार और माँ का प्यार सिर्फ बेटों के लिए खास हो गया है? आका मेरी बेटी आवाज देती रही और मैं उसके जिस्म पर मिट्टी डालता रहा। आका जब मैंने मिट्टी डालकर बराबर कर दिया, लौटने लगा। आका मैं लौट तो गया, मगर आज भी मेरी बेटी की आवाज मेरे कानों का पीछा करती है। ये मेरे आका न दिल को सुकून है न रात को सुकून है। आका मैंने इतना बड़ा गुनाह किया, आका क्या इसकी माफी मुमकिन है? क्या मेरा रब मुझे माफ कर देगा? सुल्तान रजा बताना चाहेगा, याद रखना जुर्म बराबर है। कल का बाप कब्र की आगोश में बेटी को डालकर मारता था, आज का बाप अपनी बीवी के पेट में अपनी बेटी को मार देता है। जुल्म बराबर है। कल का बाप गड्ढा खोदकर बेटी को मारता था, आज का जालिम जहेज के नाम पर बेटियों को जला देता है और बेटियों को मार देता है। जालिम तो तुम भी हो, जालिम वो भी थे, फिर भी कहते हो हम नबी के गुलाम हैं। आका खड़े हुए, आंखों में आंसुओं के कतरात है। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, मेरे साहबा कान खोलकर सुन लो, याद रखना इस्लाम का निजाम ये नहीं जो तुम करते हो। कान खोलकर सुन लो, बेशक तुम इस्लाम के दामन में तौबा करके आ जाओ, खुदा तेरी खताओं को माफ कर देगा, मगर अब जीना तेरी मर्जी का नहीं होगा। जिंदगी तेरी होगी मगर हुक्म मालिक व मौला का होगा, हुक्म रसूले खुदा का होगा। जो कुरान कहेगा वो तुझे करना है, जो तेरा पैगंबर कहेगा वो तुझे करना है, जो तेरा रब कहेगा वो तुझे करना है। या रसूल अल्लाह क्या करना है? नबी खड़े हैं, फरमाते हैं बेटियां सहमत नहीं है, बेटियां खुदा की रहमत है। ऐ लोगों कान खोलकर सुन लो, आका फरमाते हैं बेटा पैदा होता है तो अल्लाह एक रहमत नाज़िल फरमाता है और बेटी पैदा होती है तो खुदा 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आका फरमाते हैं बेटा पैदा हो तो अल्लाह एक रहमत नाजिल फरमाता है और बेटी पैदा हो तो खुदा 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। आका फरमाते हैं ये मेरे मानने वालों, जब बाजार में जाना, मार्केट में जाना और कोई तोहफा लेकर आना और तेरे घर में बेटा भी मौजूद हो और बेटी भी मौजूद हो तो बेटी को पहले देना और बेटे को बाद में देना, लड़की को पहले देना और लड़के को बाद में देना। आका फरमाते हैं ये बेटियां दफनाने के लिए नहीं आई बल्कि ये बेटियां डोलियों में सजाने के लिए आई हैं। आका फरमाते हैं तुझे मालूम है अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी उसने बेटियों को पढ़ा लिखा कर जवान कर दिया, जानते हो उसका ठिकाना जन्नत है। एक साहबी दूसरी रवायत है, आका फरमाते हैं कि सुनो जिसे अल्लाह ने 2 बेटियां अता की, पढ़ा लिखा कर बड़ा कर दिया, उसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया, बेटियों से प्यार करता रहा, अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। एक सहाबी खड़े हुए कहा आका जिसके पास 2 ना हो एक ही बेटी हो, आका फरमाते हैं खुदा उसे भी जन्नत देगा। फिर एक सहाबी खड़े हुए कहा आका जी जिसके पास बेटी ही ना हो वो क्या करे? आका फरमाते हैं जिसके पास बेटी ना हो वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना ले, खुदा उसे भी जन्नत अता करेगा। जो ही मेरे आका ने फरमाया, आका ने जो ही फरमाया इतने में एक शख्स एक बच्ची को गोद में लेकर हाजिर होता है, अर्ज करता है फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ए मेरे आका जी ये वो बच्ची है जिसका बाप दुनिया में नहीं है, जिसकी माँ दुनिया में नहीं है, जिसका कोई यारो मददगार नहीं
रही है, आका क्या कोई शख्स है जो इस बच्ची को अपनी बेटी बना ले, उसका बाप बन जाए, उसकी बीवी इसकी माँ बन जाए। अल्लाह के मुकद्दस नबी है, उस साहबजादी को गोद में लेते हैं, गोद में लेकर आका खड़े होते हैं, खड़े होकर ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे चाहने वालों, तुम में का कौन है जो इस बच्ची का बाप बनना पसंद करेगा? कौन है जिसकी बीवी इस बच्ची का माँ बनना पसंद करेगी? आका ने जो ही इतना कहा, हर सहाबी अपनी जगह पे खड़े हो गए। कोई कहता आका मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक और दे दीजिए ताकि 3 हो जाए। कोई कहता आका एक बेटी है, एक और दे दीजिए ताकि 2 हो जाए। आका मेरी बेटियों से पूछ लीजिए, मैं बेटियों से कितना प्यार करता हूँ, बेटियों से कितनी मोहब्बत करता हूँ। कोई कहता आका मेरे पास एक भी बेटी नहीं है, आका इस बेटी को मुझे दे दीजिए ताकि मैं इस बेटी से मोहब्बत करने वाला और प्यार करने वाला बाप बन जाऊं। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, अल्लाह अल्लाह मुर्दों को किसने मसीहा कर दिया। जब जामे लाल ने ऐलान किया, कहा लोगों आज के बाद बेटियों को सहमत नहीं, ज़माना तुझसे पूछे तेरी बेटी कैसी है तो कहना मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, इसलिए कि मेरे नबी ने बेटी के को जिगर का टुकड़ा कहा है। गौर से मेरी बात सुनिएगा, आपको बात समझ में आएगी। आज नबी के नाम के नारे बहुत लगते हैं, नबी के कलमा हम बहुत पढ़ते हैं। आज लोग बेटे और बेटियों में फर्क पैदा करते हैं। बेटा पैदा है हो तो हर कोई मुबारकबाद देता है, मुबारक हो अल्लाह ने आपको वारिस अता कर दिया है। लेकिन अगर बेटी पैदा हो तो लोग सब्र की तलकीन करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों आप क्यों सब्र की तलकीन की बातें करते हो? क्यों नहीं उसे कहते कि बेटी खुदा की रहमत है? जानते हैं आज सारा सिस्टम बिगड़ चुका है, सारा मिजाज बिगड़ चुका है, लेकिन कौनैन के ताजदार ने जब कहा कि बेटी खुदा की रहमत है, आज वीआईपी जमाने में आपने देखा होगा बेटा विदेश से कमाकर आता है और बाप एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाता है, बेटा अपनी अटैची बाप की कलाई में थमा देता है, बेटा जेंटलमैन बनकर चश्मा लगाकर एयरपोर्ट से निकलता है, बाप ट्रॉली खींचता हुआ जाता है। मगर कौनैन के ताजेदार की जिंदगी देखो, सैयदा फातिमा ज़हरा का आका निकाह कर देते हैं। सैयदा फातिमा जब आका से मिलने के लिए घर आती तो कौनैन के ताजेदार अपनी बेटी फातिमा की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ मेरी कौम के बुजुर्गों, क्या आप भी कभी अपनी बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो? जिस दिन तुम बेटी की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाओगे, तेरा बेटा भी तेरी बेटी की इज्जत करने लगेगा, तेरी बहू भी तेरी बेटी के वकार को समझने लगेगी, समाज इस वकार को समझेगा। आज एक दिन महिला दिवस मना लेने से लोग महिला सशक्तिकरण का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आज आपने देखा होगा लिखा जाता है सड़कों पर, गाड़ियों पर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। स्टेशन पर लिखा मिलेगा, बस पर लिखा मिलेगा, सरकारी कार्यालय पर लिखा मिलेगा, लेकिन सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ बेटियों को जिसने जलाया हो वो बेटियों को क्या बचाएंगे? जिन्होंने जहेज के लिए बहुओं को मार दिया हो वो बेटियों को क्या बचाएंगे? जिन्होंने अनाथ आश्रम बनाकर बेटियों की इज्जतें लूटी हो वो भला बेटियों को क्या बचाएंगे? भारत के रेड लाइट एरिया में जहां हर औरतें जिस्म बेचकर खाना खाती हो, भला उस मुल्क के हुक्मरान बेटियों की इज्जत क्या बचाएंगे? बेटियों की इज्जत जिसने अकेले बचाने का पूरी दुनिया में काम किया, उस जात को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, हाथों को लहराए और इस्तकबाल का जवाब दे। नारे झंडियां फहराकर 10-20 नाचने वाली औरतों को टीवी पे बुलाकर और नाच गाकर बताते हमसे ज्यादा महिलाओं से प्यार करने वाला नहीं है। आज आजादी निस्वा के नाम पर औरतों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किसने किया? सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ आजादी निस्वा के नाम पर औरतों को हवस का पुजारी किसने बनाया? बताओ आजादी निस्वा के नाम पर औरतों को दगा और धोखा किसने दिया? आज
समाज को बताया जाता है इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा जब तक इस्लाम नहीं आया था औरतों पे जुल्म और सितम का पहाड़ टूटता था। पूरी दुनिया में जितनी धार्मिक पुस्तकें हैं, धार्मिक किताबें हैं और स्कूलों में नर्सरी से लेकर पीएचडी तक जितनी किताबें पढ़ाई जाती है महिलाओं की, औरतों की इज्जत के हवाले से, मुझे एक किताब लाकर दिखाओ। मगर आज से 1450 बरस पहले अल्लाह ने कुरान में सूरह निसा नाज़िल फरमा दिया, औरतों के नाम की सूरत एक बाप बना दिया, एक सूरत उतार दिया। कहा महिलाओं इज्जत चाहिए इस्लाम के दामन में आओ, वकार चाहिए नबी के दामन में आओ, समाज में तुझे इज्जत चाहिए नबी के दामन में आओ। गौर से मेरी बात सुनिएगा, जब नबी ने कहा बेटी रहमत है तो आज हर बाप बेटी को रहमत कहने लगा। मुसलमान बेटी को रहमत कहता है, हिंदू बेटी को लक्ष्मी कहता है, क्रिश्चियन बेटी को गॉड गिफ्ट कहता है। और नबी ने कहा बेटियां जलाई नहीं जाएंगी, बेटियां डोलियों में सजाई जाएंगी। तो आज हिंदू की बेटी भी दुल्हन बन रही है, आज क्रिश्चियन की बेटी भी दुल्हन बन रही है, आज मुसलमान की बेटी भी दुल्हन बन रही है। कसम खुदा की, आज जो पूरी दुनिया में किसी भी मजहब की बेटियां दुल्हन बनकर डोलियों में सजाई जा रही है, उनकी इज्जत की जा रही है, ये किसी और की तहरीक का हिस्सा नहीं बल्कि वह मां अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तहरीक। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन साहब गौर से मेरी बात सुनिएगा, आखिर मामला यहीं पे जाकर के रुक नहीं जाता है। नबी ने इतना ही नहीं कहा बेटियां सिर्फ डोलियों में सजाई जाएंगी। आज लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म करता है। इस्लाम ने कहा तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना जहां मर्दों के लिए फर्ज है वहीं औरतों के लिए फर्ज है। लेकिन याद रखिएगा, आज आजादी निस्मा के नाम पर यहूदियों ने टीवी बनाई, घरों में लगा दिया। कहा मुसलमानों को तोड़ने के लिए हमें दो काम करना है। कहा क्या करना है? कहा मुसलमानों की जिंदगी से दो किरदार को निकाल देना है, मर्दों की जिंदगी से सीरत मुस्तफा को निकाल दो और औरतों की जिंदगी से सीरत फातिमा को निकाल दो। आपको मालूम होगा, नहीं होगा तो आज सुन लीजिए। साहब यहूदियों ने कहा मुसलमानों के घरों में पहुंचना बहुत जरूरी है। कहा मुसलमानों के घरों में पहुंचोगे कैसे? कहा टीवी बनाओ और टीवी के माध्यम से मुसलमानों के घरों में पहुंच जाओ। आंखें उनकी बेटियों की होंगी, चैनल हमारा होगा, निगाहें उनके बेटों के होंगे, किरदारों कैरेक्टर हमारा होगा। जमाने की नसों ने देखा, जो ही टीवी हमारे घर में कदम रखा, टीवी ने कदम रखा, टीवी पे एक नाचने वाली औरत ने कहा ओ औरतों घरों में बैठी हो, हाउस वाइफ बन करके जीना चाहती हो, घर में रहती हो, हमारे साथ आओ, हम तुझे बराबरी का दर्जा देंगे। कब तक बाप को रोटी बनाकर खिलाती रहोगी? कब तक शौहर का पांव दबाती रहोगी? कब तक बच्चों की खिदमत करती रहोगी? कब तक माँ बाप की हुक्मरानी सहती रहोगी? आजादी निस्वा की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आजाद भारत है, आजादी के साथ घरों से निकल जाओ। मालूम है इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, याद रखना, जिस इस्लाम ने तुझे जलने से बचाया, जिस इस्लाम ने तुझे मरने से बचाया, जिस इस्लाम ने तुझे दफन होने से बचाया, जिस इस्लाम ने भारत में तुझे शहर के चिताओं पर जलने से बचाया, उस इस्लाम के अलावा कोई तुझे राहत नहीं दे सकता है, उस इस्लाम के अलावा कोई तुझे सुकून नहीं दे सकता है। आजादी निस्वा के नाम पर औरतें फरेब में आ गई, टीवी पे दिखलाया गया इधर आओ, हम तुझे पढ़ी लिखी हो, घर में हो, शौहर की खिदमत कर रही हो, बाहर निकलो घर से, हम तुझे मॉडल गर्ल्स बनाएंगे, हम तुझे कॉल गर्ल्स बनाएंगे, हम तुझे एयर होस्टेस बनाएंगे, हम तुझे सियासियात में जगह देंगे, हम तुझे क्रिकेट के मैदान में स्पोर्ट में
جگہ دیں گے. نتیجہ کیا نکلا؟ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کے نام پہ عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا. ایئر ہوسٹس کے نام پر وجے مالیا جیسے لوگوں نے عورتوں کی عزت لوٹی. صاحب میں پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ کال گرلز کے نام پر عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا. ماڈل گرلز کے نام پر عورتوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا. کہا جسم تمہارا ہوگا، کپڑا ہماری کمپنیوں کا ہوگا. صاحب پھر کیا ہوا؟ پوچھو ان لڑکیوں سے جو جا کر کے صاحب آج ان دکانوں میں کام کرتی ہیں. آپ پوچھو ان عورتوں سے کیا نتیجہ نکلا؟ صاحب جہاں عورتیں گئیں ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا. آج کہا جاتا ہے کہ اسلام عورتوں کو گھر میں رہنے کی بات کرتا ہے. اگر گھر سے باہر نکلے گی تو کیا ہوگا؟ پاور گرلز بن جائے گی. سلطان رضا آپ سے پوچھنا چاہتا ہے، بتاؤ ایمانداری کے ساتھ آپ پلین پہ اڑتے ہو کہ نہیں اڑتے ہو؟ آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں. پوچھئے مولانا متاؤ الدین صاحب سے، ان علماء سے، یا آپ نے دیکھا ہوگا پلین میں جو لڑکیاں 400 یاتریوں کو چائے پلاتی ہیں ان کے کپڑے پر ایک بیچ لگا ہوتا ہے، لکھا رہتا ہے پاور گرلز. یہ سب سے پاورفل مہیلائیں ہیں جو ہوا میں 400 یاتری جب بٹن دبائے کبھی پانی لے کر پہنچتی ہے، کبھی چائے لے کر پہنچتی ہے. یاتری گالی دے مگر ان سے کہا جاتا ہے تم محبت سے پیش آنا ورنہ نوکری چلی جائے گی. سلطان رضا کہنا چاہے گا جب بھارت کی پڑھی لکھی لڑکیاں 400 یاتریوں کو 4 لڑکیاں مل کر ناشتہ کرا سکتی ہے تو پھر ایک عورت گھر میں اپنے شوہر کو کھانا بنا کر کیوں نہیں کھلا سکتی ہے؟ اگر ظلم 400 یاتریوں کو کھلانے میں نہیں ہے تو ظلم ایک شوہر کی خدمت میں کیسے ہے؟ مگر بتاؤ نتیجہ کیا نکلا؟ ماڈل گرلز کے نام پہ تیری عزت لوٹ گئی. سب بتا سینما ہال کے نام پر تیری عزت لوٹ لے گئی. کرکٹ کے میدان میں لے جانے کے نام پر تیری عزت لوٹ لی گئی. مگر اسلام نے کہا میرے دامن میں آ، میرے دامن میں، ہم تیری عزت کا سودا نہیں ہونے دیں گے. بیٹی ہے تو باپ کے لیے رحمت بنا دیں گے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے محبت بنا دیں گے، بہن ہے تو بھائی کے لیے عزت بنا دیں گے، ماں ہے تو تیری قدموں کے نیچے جنت بچھا دیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماں ہے تو تیری قدموں کے نیچے جنت بچھا دیں گے. بتاؤ تیری قدموں کے نیچے جس نے جنت دیا وہ اسلام ہے. جس نے تجھے باپ کے لیے رحمت بنایا وہ اسلام ہے. جس نے تجھے بھائی کے لیے عزت بنایا وہ اسلام ہے. جس نے تیری زندگی کو محبت بنا دیا وہ اسلام ہے. اے اسلام کی مقدس ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھنا دوسروں کے جھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسروں کے چکر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس نے عورتوں کو وقار دیا اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. نبی نے فرمایا اے لوگوں اپنی بیٹیوں سے بے پناہ پیار کرو. آج ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. آج لوگ اپنی بیٹیوں کی محبت میں زمین بیچ دیتے ہیں، جائیداد بیچ دیتے ہیں. بھائی اپنی بہن کی محبت میں اپنی زندگی کی ساری کمائی قربان کر دیتا ہے. بس خواہش ایک ہے اور وہ یہ کہ میری بہن کی زندگی سسرال میں اچھی کٹے، میری بیٹی کی زندگی سسرال میں اچھی کٹے. اسلام کی مقدس بیٹیوں، تم ماں باپ کی محبت کا حق کیسے ادا کرو گی؟ بتا جس باپ نے پوری زندگی کی کمائی تیری محبت میں قربان کر دی، تیری محبت میں قربان کر دی، بتا اس باپ کی محبت کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یقیناً ساری دنیا کی نگاہوں میں یہی باتیں ہوں گی. لیکن آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا کی سب سے امیر عورت کا نام حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. آپ کو ماننا پڑے گا کائنات کی سب سے امیر عورت ہے. آج آپ نے سنا ہوگا فلاں برانڈ ہے، مگر عرب میں سب سے بڑا تجارتی میلہ لگتا اور جس میں تنہا 90% جس عورت کا مال بکتا اسی عورت کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے. یاد رکھیے گا صاحب، تب جا کر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کبریٰ
جب اسلام کے دامن میں آئی اور نبی کے نکاح میں آئی تو مکے کی سب سے امیر عورت تھی، مگر جب انتقال ہوا تو مکے کی سب سے غریب عورت تھی۔ اللہ اللہ، موت کا وقت قریب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغل میں کھڑے ہیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ میری بس ایک خواہش ہے، آقا جی میں نے اپنی باقی بچیوں کا رشتہ اپنی زندگی میں کر دیا مگر میری ایک بیٹی بچی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، یہ آقا میری بیٹی فاطمہ کا رشتہ آپ اپنی نگرانی میں کیجئے گا، اچھا رشتہ انجام دیجئے گا، اچھے رشتے کی تلاش کیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح سرکار مولائے کائنات سے ہو رہا ہے، آقا کی آنکھوں میں آنسو کے قطرات ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے آقا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہا اے ام سلمہ آج مجھے خدیجہ کی یاد آ رہی ہے، اگر آج خدیجہ باحیات ہوتی تو آج میں خدیجہ سے فخر کے ساتھ کہتا اے خدیجہ اس وقت مکے کے سب سے اچھے نوجوان سے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا ہے۔ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے وہ اسلام کی مقدس شہزادیوں غور سے بتاؤ، حضرت علی کا نکاح نبی نے حضرت فاطمہ کے ساتھ کیا، بتاؤ کیا علی نے حضرت فاطمہ کے مانگ میں سندور ڈالا تھا؟ بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کیا حضرت علی نے سیدہ فاطمہ کے گلے میں مالا ڈالا تھا؟ نکاح ایجاب و قبول کا نام ہے، بیجا رسومات کا نام نکاح نہیں ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادوں بتاؤ کہ مقدس شہزادوں بتاؤ کیا حضرت علی نے کہا تھا یا رسول اللہ اتنی دولت دیجئے گا تو فاطمہ سے نکاح کروں گا؟ آج تو آقا کی سنت کی باتیں تم کرتے ہو، آقا کی محبت کی باتیں تم کرتے ہو، ایمانداری سے بتاؤ تم کہتے ہو مجھ سے زیادہ میری بیوی سے کوئی پیار نہیں کرتا، مجھ سے زیادہ میری بیوی سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ تیری بیوی نے تو سنا تھا میرا ہونے والا شوہر انجینئر ہے، میرا ہونے والا شوہر ڈاکٹر ہے، میرا ہونے والا شوہر بڑا امیر کبیر ہے، لیکن تیری ہونے والی بیوی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب تیرا باپ تیری بیوی کے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوگا اسکارپیو دے گے تو تیری بیٹی تو تیری بیٹی دلہن رسالت مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہاں سے تھوڑی میری بات تلخ ہوگی لیکن نشتر جو لگاتا ہے وہ برا نہیں ہوتا، ایمانداری سے سنیے گا۔ آج تو کہتا ہے تیری بیوی نے سوچا تھا کہ بیوی نے سوچا ہوگا میرا شوہر بڑا امیر و کبیر ہے، اپنے پیسے کی ڈولی اور بارات لے کر کے آئے گا، میں دلہن بن کر حسین و جمیل بن کر اس کے آنگن میں جاؤں گی، لیکن جب اس کا باپ آنکھوں میں آنسو کے قطرات لے کر آتا ہے اور کہتا ہے بیٹے فلاں زمین بیچ دو اس لیے کہ بیٹی کی شادی میں اسکارپیو دینی ہے، میرے سارے اکاؤنٹ سے پیسے نکال کر لاؤ، جب ماں بیٹی کے نگاہوں کے سامنے اپنے زیورات لا کر کے رکھتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے بیچ دو میرے زیورات، مگر میری بیٹی کا رشتہ ڈاکٹر سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، میری بیٹی کا رشتہ انجینئر سے ٹوٹنا نہیں چاہیے، میری بیٹی کی ڈولی اسی امیر و کبیر کے گھر جائے گی۔ سلطان رضا تجھ سے پوچھنا چاہتا ہے پتا تو کہتا ہے میں بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں دعویٰ بے اصل ہے، چھوٹی ہے محبت تیری۔ آج لوگوں نے نکاح کو عبادت نہیں بلکہ سماج میں تجارت بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھیے گا جب تک ہم نکاح کو تجارت بنا کر کے رکھیں گے پھر سے بیٹیاں زحمت سمجھی جانے لگیں گی، پھر سے بیٹیوں پہ ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج صاحب اگر کسی کے پاس 5 بیٹی ہو تو رات کو نیندیں ختم ہو جاتی ہے، کسی کے پاس 6-7 بیٹیاں ہو تو زندگی حرام ہو جاتی ہے، 2 بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ کہتا ہے اب بیٹی پیدا نہ کرنا، اس لیے کہ اب اگر بیٹی پیدا کر دو گی تو میں اتنے پیسے کہاں سے لے کر کے آؤں گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اسی ملک میں ایک باپ اس لیے اپنی شوہر اس لیے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا کہ اس کی بیوی نے صرف 6 بیٹیوں کو جنم دے دیا تھا؟ سلطان رضا پوچھنا چاہتا ہے یہ کہاں کی مردانگی ہے، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا خدا را میری قوم کے شہزادوں بیٹیوں پہ ظلم و ستم نہ کرو، توبہ
کرو جس طریقے سے میری بہن کی عزت ہے ویسے ہی آنے والی میری بیوی کے بھائیوں کی بھی عزت ہے. آج کے بعد ہم شادیاں تو کریں گے مگر کسی لڑکی کے باپ کے آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرے گروا کر شادیاں نہیں کریں گے. ہم کسی کے ماں کے پائل کو بیچوا کر شادیاں نہیں کریں گے. ہم کسی کے باپ کی زمین و جائیداد کو بیچوا کر شادیاں نہیں کریں گے. بتاؤ کتنے نوجوان ہو جو آج کے بعد جب تیرا جب نکاح ہوگا تو تم اپنے نکاح میں جہیز نہیں مانگو گے؟ ہے کوئی نوجوان؟ ارے چچا آپ چھوڑیے، نوجوان کتنے نوجوان ہیں؟ ایک ماشاءاللہ دو، ذرا کھڑے ہو جاؤ تو کتنے نوجوان جس کو جہیز نہیں لینا ہے ذرا کھڑا ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجمع میں جتنے نوجوان ہیں اس میں کوئی نوجوان نہیں ہے جو جہیز لینا نہیں چاہتا. کیا تم چاہتے ہو کہ تیری بیوی کے سامنے تیرا سسر روئے اور تیری بیوی کے سامنے اس کی ماں کے پاؤں کے پائل بک جائے؟ ہے کوئی نوجوان پورے مجمع میں جو جہیز نہیں لینا چاہتا ہو؟ ادھر تو دو چار نوجوان ماشاءاللہ. اب بات سمجھ میں آ گئی. بہت سارے بچے ہیں سب شادی شدہ ہیں اور ماشاءاللہ کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیوں میں جہیز نہیں مانگیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے تو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دو چار 10-20 لوگ ہیں جو اپنے بیٹے کی شادیوں میں جہیز نہیں لیں گے. میری قوم کے نوجوانوں یہ جلسے اس لیے نہیں ہوتے صرف آئیں گے کھائیں گے اور سن کر چلے جائیں گے. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں تاکہ سماج میں بدلاؤ آئے، سماج میں پریورتن ہو. میرے بتانے کا مقصد یہ تھا، غور سے سننا. آج ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے زمین بیچ دیتا ہے، اپنی بیٹی کے لیے جائیداد بیچ دیتا ہے. مگر سلطان رضا تجھ سے گزارش کرنا چاہے گا، بتا اسی گھر میں جب دوسرے کی بیٹی بہو بن کر کے آتی ہے پھر تیری محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ تیرا معیار کہاں چلا جاتا ہے؟ تیری محبت کہاں گروی پڑ جاتی ہے؟ بتا کیا نبی نے نہیں فرمایا کہ جس طریقے سے تیری بیٹی ہے ویسے ہی دوسروں کی بیٹی بھی تیری بیٹی ہے؟ کیا تم بھول گئے؟ یاد رکھیے گا آج لوگ اپنی بیٹی کے لیے زمین بیچ دیتے ہیں. اپنی بیٹی بیمار پڑے تو اسکارپیو لے کر چلے جاتے ہیں مگر اسی گھر میں جب بہو بیمار پڑ جائے، جب اسی گھر میں بہو کی طبیعت خراب ہو جائے تو صاحب ہم بھول جاتے ہیں کہ میری بیٹی کو بے بہو کو بھی علاج کی ضرورت ہے. آج سماج بگڑتا چلا جا رہا ہے، آج ماحول بگڑتا چلا جا رہا ہے. آج صاحب بہویں ساس سسر سے محبت نہیں کرتی اور ساس سسر بہووں سے پیار نہیں کرتے. یاد رکھنا میدان محشر میں بیٹیوں کی وجہ سے جنت میں جاؤ گے مگر وہی بہویں بھی کھڑی ہوں گی، کہیں گی مالک و مولا ہمیں انصاف چاہیے. اے مولا یہ جو شخص جنت میں جا رہا ہے بیٹی کی وجہ سے، میں بھی بیٹی بن کر اس کے گھر گئی تھی، پوری زندگی اس کے گھر گزارنے کے لیے گئی تھی، پوری زندگی کا سودا اس کے گھر کر کے گئی تھی. آقا جب اس کی بیٹی آتی تو یہ کپڑا خرید دیتا، جب اس کی بیٹی آتی تو اس کا علاج کراتا، مگر اسی گھر میں بہت ہی بیمار پڑ جاتی، میرا سسر مجھے نہیں پوچھتا، میری ساس مجھے نہیں پوچھتی، انتظار کرتا میرا شوہر جب پیسہ بھیجے گا تو میرا علاج ہوگا. اپنی بیٹی بیمار ہوتی تو جا کر سسرال سے لا کر علاج کرایا جاتا اور میں بیمار پڑتی تو مجھے میکا بھیج دیا جاتا، میرے غریب ماں باپ کو پریشان کیا جاتا. بتاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی بیٹیوں پہ ظلم کی وجہ سے تم جہنم میں چلے جاؤ. اس لیے آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر کے جاؤ، جس طریقے سے تیری بیٹی ہے ویسے ہی آنے والی بہو بھی تیرے گھر کے لیے بیٹی ہے. اس لیے آج کے بعد جب جانا بیٹے کا رشتہ کرنا تو تم بیٹی بہو لانے نہ جانا بلکہ سماج میں اپنے گھر کے لیے بیٹی لانے کے لیے. اے زندہ باد زندہ باد. ماشاءاللہ مقدس شہزادیوں یاد رکھنا. آج صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ذرا پورا مجمع نعرہ لگا لیجئے، ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत नदीम रजा फैजी मिंबर शरीफ पे जलवा गर हो चुके हैं। जो हजरात दूर हैं थोड़ा करीब आए और शायर माशाअल्लाह बहुत अच्छा। आप जहाँ हैं इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे। शायर इस्लाम जनाब नदीम रजा फैजी तशरीफ लाए। माशाअल्लाह आप उनकी बहुत अच्छी शायरी होती है, जितना सुनेंगे उतना ही सुनने की तबीयत करेगी। इंशाअल्लाह मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे। इजाजत है मैं कुछ बातें और बोलूं, इजाजत है, मगर अब यूं नहीं, दोनों हाथों को उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा थोड़ी आवाज ऊंची करके बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या हबीब अल्लाह। सुनिए सुनिए जरा गौर से सुनिएगा। आप अपनी बेटी, अब आपकी बेटी ससुराल से मैका आती है, काम करे न करे कोई बात नहीं है, बीमार पड़ गई माँ काम करने को तैयार है, बीमार पड़ गई बाप काम करने को तैयार है, मगर उसी घर में जो दूसरे की बेटी बेटी बनकर आई थी, अगर वो बीमार पड़ गई तो सास नाराज हो जाती है, ससुर नाराज हो जाता है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है ये कहाँ का इखलाक है, ये कहाँ की मोहब्बत है, ये कहाँ का प्यार है। मैं कहना चाहूंगा नहीं साहब, अगर आप जिस तरीके से अपनी बेटी को बेटी समझते हो, गौर से सुनिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी है हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। बताओ बताओ, बेटी हो तो रसूलुल्लाह की बेटी की तरह। आज हर घर में बंटवारा है। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, बताओ ईमानदारी के साथ, आज सास ससुर ने बहू को बेटी समझना छोड़ दिया और बहुओं ने सास ससुर को माँ बाप समझना छोड़ दिया। अगर आज हमारे घरों में ये माशरा पैदा हो जाए, हर बेटी वाला अपनी बेटी को बताए मेरी बेटी, जब तक तू मेरे घर थी मेरी बेटी थी, अब ससुराल में जा रही है, अपने शौहर के माँ बाप को सास ससुर नहीं बल्कि उन्हें अपना माँ और बाप समझ लेना। शरीयत कहती है कि तेरा ससुर भी बीमार हो, तेरा बाप भी बीमार हो, तो तेरी जिम्मेदारी है तू अपने पहले ससुर की खिदमत करे, अपनी सास की खिदमत करे, फिर मौका मिले तो माँ बाप के लिए पलट करके जाना। आज क्या माजरा है, आज अगर माँ बाप बीमार पड़ गए तो पूरा घर छोड़कर बेटी उठेगी, घर को चली जाएगी। सुल्तान रजा पूछना चाहता है क्यों, क्या तुम शौहर की मोहब्बत को भूल गई, क्या तुमने ससुराल वालों की मोहब्बत को ठुकरा दिया, क्या भूल गई मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीम को। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, शौहर की फरमा बरदारी अव्वल है। आज भारत में तलाक की नौबतें क्यों आती है, वजह यह है रिश्ते क्यों बिगड़ जाते हैं, उसकी वजह यह है शादियां तो होती हैं मगर लड़की को मालूम नहीं कि शौहर का क्या हक है, शादियां तो होती है मगर शौहर को नहीं मालूम कि बीवी का क्या हक है। बस एक हक पहले सुन लीजिए, आमिना के लाल है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है, एक ताजिर तिजारत के लिए जा रहा है, अपनी बीवी से कहता है शरीके हयात सुन लो, तुम कभी छत से नीचे न आना, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। उसका बाप नीचे के मंजिल में रहता था, बाप बीमार पड़ जाता है, बीवी आज की अगर औरतें होती तो ऊपर से नीचे आकर बाप की खिदमत में लग जाती, मगर वो जमाना रसूलुल्लाह का जाहिरी जमाना था, हर शख्स नबी से मोहब्बत करने वाला था। वो एक कासिद को कहती है जा और जाकर आमिना के लाल से पूछना, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछना, मेरा बाप बीमार पड़ चुका है, मेरे शौहर ने मुझसे कहा है छत से नीचे न उतरना, ऊपर के ही मकान में रहना, आका से पूछो कि मेरा बाप बीमार है, क्या मैं उतर के जाकर बाप की खिदमत कर सकती हो। अल्लाह अल्लाह, जाने वाला कासिद नबी की बारगाह में जाता है, आका से जाकर अर्ज गुजार होता है, आका जी एक औरत है जिसका शौहर तिजारत के लिए गया है, मगर ये मेरे आका अब उस शौहर ने पाबंदी लगा दी है कि तू अपनी बीवी पर के ऊपर से नीचे ना आना, नीचे उसका बाप बीमार पड़ा है, क्या वो औरत अपने बाप को देखने जा सकती है। आका फरमाते हैं जाकर के कह दो कि शौहर की मोहब्बत पे कायम रहे। अल्लाह अल्लाह, औरत ठहर जाती है इसलिए कि उसके नजदीक दुनिया की मोहब्बत बड़ी नहीं थी, सबसे बड़ी मोहब्बत थी तो मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत थी। आज तो हमने सब कुछ गवा दिया, इखलाक गवा दिया, किरदार गवा दिया, मोहब्बत का
पर्दावादी, आज हमने पर्दे को बलाए ताक रख दिया, हम भूल गए कि पर्दा भी कोई चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरतों की आवाज में भी पर्दा है। औरत अगर कुरान की तिलावत करे तो इतनी आवाज से कि घर से बाहर न निकले। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बताओ जो इस्लाम आवाज की इतनी हिफाजत कर रहा है, वो इस्लाम औरतों की इज्जत की कितनी हिफाजत करेगा। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, इल्म का मकसद है इज्जत हासिल करना, इल्म का मकसद है अपनी आबरू की हिफाजत करना, इल्म का मकसद है अपने किरदार और कैरेक्टर की हिफाजत करना। ऐसा ना हो कि तालीम हासिल करने के लिए तो हम जाएं मगर बाप की इज्जत को मार्केट में बेच करके चले आए, माँ बाप की इज्जत को बलाए ताक रख कर चले आए, शौहर की मोहब्बत को तार तार कर दे। आमिना के लाल फरमाते हैं, कह दो शौहर के हुक्म पर कायम रहे। कुछ दिनों के बाद बाप का इंतकाल हो जाता है। साहब फिर वो औरत कासिद को भेजती है, जा और जाकर के रसूलुल्लाह से पूछ आ कि जिस औरत ने कहा था आका जी कि उसका बाप बीमार है, अब उसका बाप इंतकाल कर चुका है, वो अपने शौहर के हुक्म पर कायम रहे या आका जी अपने बाप के मरे हुए बाप के चेहरे को देखने जा सकती है। आज की कोई बेटी होती तो नहीं रुकती, मगर वो कल की बेटी थी जो जानती थी जिस्म मेरा है मगर शरीयत मेरे रसूल की है, जिस्म मेरा है मगर हुक्म मेरे रसूल का है, जिस्म मेरा है मगर आबरू इस्लाम की है। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, इस वाक़े को सुनने के बाद याद रखना कि जिस्म तेरा है मगर मर्जी मेरे रसूल की है। इसलिए कभी भागकर काफिरों के साथ शादियां न करना, जिंदगी में जब भी रिश्ता करना ईमान वालों के साथ करना, ईमान वालों के हाथ में हाथ देना। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाते हैं, जाकर के कह दो सब्र करे और शौहर की मोहब्बत पर कायम रहे। अल्लाह अल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाप के जनाजे में शरीक होते हैं। आका खुद जनाजे की नमाज पढ़ाते हैं। जनाजे की नमाज के बाद आका खड़े होकर ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, मालूम है अल्लाह ने इस शख्स को बख्श दिया है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है। कहा इसकी बख्शिश हो गई, मगर ये सहाबा मालूम है इसकी बख्शिश क्यों हो गई। कहा या रसूल अल्लाह, आपसे बेहतर कौन जानता है। आका बताते हैं कि इसकी बीबी, इसकी बेटी की शौहर की मोहब्बत की वजह से अल्लाह ने इसके खताओं को माफ कर दिया है। इसकी बेटी अपने शौहर की वफादार है, ये बीमार रहा, इसकी बेटी शौहर के हुक्म पे कायम रही, ये इंतकाल कर गया, इसकी बेटी शौहर के हुक्म पर कायम रहे रही। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ फरिश्तों मुझसे जाफिजा सुना दो कि जिसकी बेटी शौहर की से इतनी मोहब्बत करने वाली हो, भला उसके बाप को जहन्नम में कैसे डाला जाएगा। याद रखना, इस्लाम के मुकद्दस माँ बाप, आप भी अपनी बेटियों को ये पैगाम देना, ए मेरी बेटी ससुराल में जाना, शौहर की वफादार बन करके रहना, ससुराल में कदम रखना तो अपने सास ससुर का वफादार बन करके रहना, मैका में रहना, माँ बाप की आबरू और इज्जत का ख्याल रखना, कभी पर्दे की आबरू को लूटने न देना। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी है। आज हमारे घरों में फितना और फसाद आम हो चुका है। आज माशरे का हाल ये है कि साहब हर शख्स आपस में बंटवारे की मंजिल पे पहुंच चुका है, बंटवारे की तहरीर पे पहुंच चुका है, हर घर और माशरा बिगड़ चुका है। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, तुम शादी करके जाती हो, ससुराल में कदम रखने के बाद आज की वीआईपी बहू अपने शौहर से कहती है, मैं तेरी माँ के साथ नहीं रह सकती, मैं तेरे बाप के साथ नहीं रह सकती। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है, बता क्या तुम अपनी मोहब्बत के लिए एक माँ से उसके बेटे को छीन लोगी? क्या तुम अपनी चंद रोजा अय्याशी भरी जिंदगी के लिए एक बाप से उसके बेटे को छीन लोगी? क्या तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए एक बहन से भाई को छीन लोगी? क्या तुम सिर्फ अपनी खुशी के लिए भाई से भाई को छीन लोगी? सुल्तान रज़ा इस्लाम की मुकद्दस बेटियों से कहना चाहेगा, मैका में रहना तो भी सीरत खातून जन्नत पे अमल करके मैका में भाइयों की मोहब्बत को कायम रखना और ससुराल में कदम रखना, थोड़ी मुसीबत बर्दाश्त करके ससुराल वालों की मोहब्बत को कायम रखना, भाइयों के दरमियान दरार न आने देना, बाप बेटी को जुदा न होने देना,
याद रखना, जो बेटा अपनी माँ को छोड़ देगा वो कल अपनी बीवी को भी छोड़ सकता है, जो बेटा अपने बाप को छोड़ देगा वो कल होकर तेरी औलादों को भी छोड़ सकता है। इसलिए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों ऐसी गलती न करना। सैयदा खातून जन्नत है, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये बेटी फातिमा आपके घर में काम बहुत है, ये मेरी बादी फिजा है, आप इसे अपने साथ ले जाएं, मगर सुनिए आप इसे नौकरानी बनाकर नहीं बल्कि आप इसे बहन बना करके रखिएगा। कौनैन के ताजदार है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आपके घर में कितनी गरीबी होगी? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के घर से भी ज्यादा आपके घर में गरीबी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का आलम यह है, आज तो हमारी बेटी के घर में थोड़ी सी गरीबी आ जाए तो हम दामाद पे मुकदमा कर देते हैं, उसके घर वालों पे मुकदमा कर देते हैं। मगर कौनैन के ताजदार एक बार अपनी बेटी से मिलने के लिए गए। अल्लामा इमाम गज़ाली ने इसे मुखाशिफतुल क़ुलूब में लिखा, कहते हैं जब मिलने के लिए गए तो सैयदा फातिमा को सलाम किया, सलाम का जवाब मिला। सैयदा कहती हैं, बाबा जान आज आपकी और मेरी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को क्या गुजरी होगी जब एक बेटी बाप से कहे कि आपसे मुलाकात नहीं हो सकती। आका फरमाते हैं, बेटी क्या मामला है, क्या मेरी लाडली बेटी आज मुझसे नाराज है? सैयदा कहती है, बाबा जान नाराज नहीं, मेरे पास एक ही चादर है मगर उससे पूरा बदन नहीं ढक पा रहा है। सुल्तान रज़ा आज की माँ और बहनों से पूछना चाहता है, बताओ सैयदा फातिमा के पास तो एक ही चादर है मगर बाप के पास मोबाइल से कोई शिकवा नहीं, माँ के पास कोई शिकवा नहीं, मैका में कोई शिकवा नहीं, न फजर की नमाज छुट्टी है, न जोहर की नमाज छुट्टी है, न असर की नमाज छुट्टी है, न मगरिब की नमाज छुट्टी है, न कुरान की तिलावत बंद हुई है, एक ही चादर है। अर्ज करती है, बाबा जान पूरा बदन नहीं ढक पा रहा है। हम और आप होते तो सीना तान कर कहते, फातिमा तेरे शौहर ने तेरे लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदा, मेरी बेटी तेरे शौहर ने तेरे लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदा। हम होते तो नाराज हो जाते। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी नहीं कहा कि अली ने फातिमा के लिए कपड़ा क्यों नहीं खरीदा, हजरत अली ने फातिमा के लिए इंतजार क्यों नहीं किया, बल्कि आका कहते हैं, बेटी घबराने की बात नहीं है, आपके पास एक चादर है तो आपके बाबा के पास दो चादरें हैं, एक मेरी चादर आप ले लीजिए। जो बाप बेटी को चादर ओढ़ाकर पूरी दुनिया के औरतों की इज्जत की हिफाजत करे उसे ही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुनो, तेरी बेटी के घर भी गरीबी आ सकती है लेकिन अपने दामाद पे दबाव न बनाना, उस पे मुकदमे करके उसे गालियां न देना, बल्कि बेटी के सर पे दुपट्टा डाल के कहना, बेटी सब्र करो, तेरा शौहर खुश है तो तेरी दुनिया भी जन्नत है, तेरी आखिरत भी जन्नत है। आखिरी पैगाम जो सुल्तान रज़ा दो पैगाम देगा उसके बाद मेरी गुफ्तगू खत्म। मैं ये अर्ज कर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बेटी जब बादी को लेकर के गई है घर पर तो कुछ दिनों के बाद आका मिलने के लिए गए। क्या देखा, कौनैन के ताजदार की बेटी है। आज तो हमारे घर की औरतों को फुर्सत ही नहीं है। फुर्सत कहाँ है कि साहब हमारी घर की औरतें बैठ करके कुरान की तिलावत करेंगी, इबादत करेंगी, काम इतना कि फुर्सत नहीं। क्या नबी की बेटी से भी ज्यादा आपके घरों में काम है? अब तो आपको गेहूं भी पीसने की जरूरत नहीं है, अब तो कपड़ा धुलने के लिए वॉशिंग मशीन है, साहब पानी चलाने के लिए नल मौजूद है, आपके पास सारा काम करने के लिए मशीनें मौजूद है। मगर कौनैन के ताजेदार की बेटी है, हाथों से झूला भी झूलाती, हाथों से चक्की भी चलाती, अल्लाह अल्लाह मस्जिद से पानी भी भर करके लाती। हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कि एक रोज मैं सुबह को नमाज के लिए जा रहा था, क्या देखता हूँ कौनैन के ताजेदार की बेटी सैयदा फातिमा चक्की चला रही है। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं बीमार था और आका चक्की चला रहे थे। मैं डर गया, कहा सैयदा मुझे चक्की चलाने को दीजिए। जब मैं मस्जिद पहुंचा तो ताखीर हो गई। आका ने पूछा बिलाल कहाँ रुक गए थे? आंखों में आंसू थे, आका मैं सैयदा फातिमा की चक्की चला रहा था।
चक्की चला रहा था। बताओ इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, चक्की चलाने वाली है सैयदा फातिमा, मगर कायनात में उनकी मिस्ल कोई औरत नहीं है, उनसे बेमिस्ल बेमिसाल कोई औरत नहीं है। सैयदा खातून जन्नत है। आका जब पहुंचे तो चक्की चला रही थी। आका फरमाते हैं बेटी फातिमा तुम चक्की चला रही हो, बताओ फिजा कहाँ है? कहा आका जी फिजा घर में है। कहा क्या बीमार है? कहा नहीं अब्बा हुजूर फिजा बीमार नहीं आराम कर रही है। आका फरमाते हैं बेटी फिजा आराम कर रही है और आप चक्की चला रही हो। सैयदा मुस्कुराती है, कहती है बाबा जान आप ही ने तो कहा था कि फिजा को बहन बना करके रखना। अब्बा हुजूर मैंने फिजा को बहन बना लिया और हम दोनों ने आपस में काम बांट लिए हैं। कल फिजा की बारी थी चक्की चलाने की, आज फातिमा की बारी है चक्की चलाने की। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, अगर तुम भी अपने घरों के सारे कामों को बांट लो, बड़ी बहू अपने हिस्से का काम, छोटी बहू अपने हिस्से का काम, सास अपने हिस्से का काम, ननद अपने हिस्से का काम, कसम खुदा की बताओ किसी घर में बंटवारा होगा? अरे बोलिए जरा जोर से, दोनों हाथों को उठाकर, किसी घर में बंटवारा होगा? नहीं होगा। तो सिर्फ मुहर्रम में 10 दिन सैयदा फातिमा के नाम का फातिहा करने वाली ही न बनो, बल्कि उनके किरदार का चिराग भी अपनी जिंदगी में रोशन करने वाली बनो। आखिरी पैगाम सुल्तान रजा देना चाहेगा इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, दुनिया के किसी औरतों का फ्लावर न बनो। क्यों तुम उन औरतों के चक्कर में पड़ती हो जो शराब पीकर दुबई में मर जाती है, जो चर्च अफीम और स्मोकिंग करके नाचती गाती और अपनी जान देती है, कॉलेज में शराब की पार्टियां करती है। अगर तुझे पैरवी ही करनी है तो कौनैन के ताजेदार की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा की पैरवी करो। सुनो सुनो, कॉलेज की दुनिया बड़ी हसीन है, स्कूल की दुनिया बड़ी हसीन है, व्हाट्सएप की वाली बड़ी हसीन है, फेसबुक की वाली बड़ी हसीन है। तुम भी सेल्फियां लेकर फेसबुक पे डाल देती हो। इस्लाम की मुकद्दस बेटियों, इस्लाम ने औरतों के लिए हराम करार दिया। जिस तरीके से मर्द के लिए जायज नहीं कि औरत को देखे, ऐसे ही औरतों के लिए भी जायज नहीं कि किसी मर्द को देखे। किसी औरत के लिए जायज नहीं कि सेल्फी लेकर फेसबुक पर डाले। जितने लोग देखेंगे सबका गुनाह उनके सरों पर होगा। फेसबुक की दोस्ती दोस्ती नहीं है, व्हाट्सएप की वाली की दोस्ती दोस्ती नहीं है। जो लोग दोस्ती की बातें करते हैं, ताजमहल दिखलाकर तेरी आबरू लूटना चाहते हैं, ताजमहल दिखलाकर तेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। आज गैरों की नजरें हमारी बहू बेटियों की इज्जत पर पड़ी हुई है। आज वो जाहिरी शक्ल सूरत बनाकर मुसलमानों का तेरी इज्जत पे हमला करना चाहते हैं, तुझे भगाकर शादी रचाना चाहते हैं। याद रखना, किसी के मांग में सिंदूर डाल देने से निकाह नहीं हो जाएगा, किसी के मंगलसूत्र बांध देने से निकाह नहीं हो जाएगा, किसी का माला पहना देने से निकाह नहीं हो जाएगा। निकाह तो जब ही होगा जब कोई आलिम नबी की सुन्नत के मुताबिक तेरा निकाह ईमान वाले से पढ़ाएगा, तब तेरी शादी हो पाएगी। कोई कह दे कि हमने सिंदूर डाल दिया निकाह हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। याद रखिए, एक ताजा घटना नदीम रजा फैजी साहब सुन लीजिए। हम साहब किसी बिहार की एक लड़की है और साहब काम करती थी ऑफिस में गैर लड़का के साथ। क्या हुआ, मोहब्बत दोनों में बढ़ गई। एक दिन वो बहाने से लेकर के अपने माँ अपने घर गया, कहा मेरी माँ बड़ी बीमार है, नशीली पदार्थ और नशीली चीज खिला दी, उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिया। सुबह को जब लड़की ने कहा तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो मांग में सिंदूर भर दिया और कहा मैं नहीं चाहता था कि तू मेरी मोहब्बत है दूसरे की हो जाए। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, यही वजह है कि इस्लाम कहता है कॉलेज जाना मगर भाई के साथ जाना, मार्केट जाना मगर माँ बाप के साथ जाना। जो तेरा बॉयफ्रेंड दिल्ली के रोडवेज में तेरी इज्जत नहीं बचा सकता, क्यों नहीं बचा सकता? इसलिए कि वो तुझे बॉय गर्लफ्रेंड के नजरिए से देखता है, लेकिन तेरा भाई तुझे इज्जत के नजरिए से देखता है, तेरा बाप तुझे इज्जत के नजरिए से देखता है। यही वजह इस्लाम ने कहा औरत घर से जाए तो किसी मोहरिम के साथ जाए, अपने माँ बाप और भाई के साथ जाए। सुल्तान रजा आपको ये पैगाम देना चाहेगा, कॉलेज की वादी में आज लड़के तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, कोई
कोई आवारा लड़का तेरी कलाई पकड़े ना तो डांट कर भगाना, कहना जालिम हट जा। हम उस हजरत सकीना के मानने वाले हैं जिस सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी करबला में पर्दे की आबरू बचा ली है, कूफे में पर्दे की आबरू बचा ली है, मेरी कलाई पकड़ता है। हम तो उस फातिमा के मानने वाले हैं। जब मैदान महशर में आएंगी तो हुक्म होगा, आए मैदान महशर के लोगों निगाहें नीची कर लो, हजरत फातिमा आ रही है, फातिमा आ रही है। हमसे बेपर्दगी की बात मत करना। हम इल्म हासिल करने आए हैं, इज्जत कमाने के लिए, इज्जत गंवाने के लिए नहीं। फिर भी तेरी कलाई पकड़े, कहना हट देख तेरी बहन की कलाई फला ने पकड़ ली है। मुड़कर कहेगा किसकी हिम्मत है जो मेरी बहन की कलाई पकड़ ले। जोरदार तमाचा देकर कहना जालिम, जब तेरी बहन की कलाई कोई कॉलेज में पकड़ ले तो तुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं भी किसी की बहन हूँ। अगर तू मेरी कलाई पकड़ेगा तो बता मेरे भाई को कब अच्छा लगेगा, मेरे बाप को कब अच्छा लगेगा। इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम कहती हो कि हमारे गोद में अच्छे बेटे जन्म नहीं लेते, उसके लिए जरूरी है सरकार गौसे आज़म की माँ की तरह बनो कि बचपन से लेकर जवानी तक किसी गैर पे नजर नहीं डाली। आज हम सोचते हैं शराब पीते रहे, जना करते रहे, जुआ खेलते रहे, बेपर्दगी करते रहे, दुनिया की ऐशो इज्जत की महफिलें हम सजाए रहे और सोचते हमारी औलादें नेक हो जाए। नहीं साहब, तुम चाहते हो गौस नहीं, कम से कम गुलामे गौस मेरी गोद में आए तो गौसे आज़म के वालिद के किरदार को अपनाना होगा, गौसे आज़म के वालिदा के किरदार को अपनाना होगा। वो कौन मुकद्दस माँ है? दुनिया की हर माँ बच्चों को पहले जन्म देती है, फिर बेटा हाफिज कुरान बनता है, कारी कुरान बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर बनता है। मगर वाह हजरत फातिमा उम्मुल खैर है जिन्होंने गौसे आज़म को जन्म दिया तो 18 पारा का हाफिज कुरान बना दिया। मदरसे में गए, मौलाना साहब ने पूछा बेटा कहाँ से पढ़ा है? तो हमारे पीराने पीर ने कहा मैं किसी और की दरसगाह से पढ़कर नहीं, अपनी माँ की गोद से पढ़ के आ रहा हूँ, माँ के पेट से पढ़कर आ रहा हूँ। मेरी माँ 18 पारा की हाफिज कुरान है, रोजाना कुरान पढ़ती थी, मैं सुनकर याद कर लिया करता था। यही वजह है इस्लाम ने कहा उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद। कौन कहता है कि बच्चे 3 साल के बाद पढ़ते हैं? बच्चे तो माँ की पेट से लेकर कब्र की मंजिल तक पढ़ते हैं। ऐ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, बेटा पढ़े तो एक जिंदगी संवरती है और बेटी पढ़े तो नस्लें संवर जाती है। इसलिए काबिल मुबारकबाद है रईस भाई जिन्होंने आज अपनी बच्ची की विलादत में के मौके से और अकीका के मौके से इस अजीमुशान जलसे का इनेकाद करके बताया कि लोगों, बेटियां कल भी खुदा की रहमत थी और बेटियां आज भी खुदा की। दोनों हाथों को उठाकर बोले बेटियां आज भी खुदा की रहमत है। बेटियों से नफरत नहीं करेंगे, बल्कि बेटी किसी की भी हो हम उससे करेंगे तो मोहब्बत करेंगे। आज समाज में बेटियों की इज्जतें इसलिए लूटती है कि हम अपनी बेटी को बेटी, दूसरों की बेटी को बेटी नहीं समझते। हम जिस तरीके से आपकी बेटी बेटी है वैसे ही दूसरों की बेटी भी बेटी है। जिस दिन हमारे समाज में ये मोहब्बत पैदा हो गई, इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी हसीन होगी और आखिरत भी हसीन होगी। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।